नेतृत्व करने वाले, समस्त कर्मों के बिना मोक्ष मार्ग का नेतृत्व करने वाले, समस्त कर्मों के विनाशक तथा विश्व के समस्त तत्वों के ज्ञाता, ऐसे वीतराग प्रभु को वंदन। उन्हीं की आज्ञा में विचरने वाले त्यागी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित धर्मानुरागी बंधुओं, पहले मुझे ये बता दीजिए कि मुझे हिंदी, इंग्लिश या बाइलिंगुअल करना है। आई एम ओके विथ एनीथिंग। बाइलिंगुअल करिए बाइलिंगुअल। कोई। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। ओके, ओके सर। सबसे पहले तो आई एम थैंकफुल टू द मेंबर्स ऑफ जैज जैन एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स फॉर अलाउिंग मी टू चूज दिस टॉपिक, एंड आई एम थैंकफुल टू पूर्वी फॉर कोऑर्डिनेटिंग on behalf of Jazz and Bhandari sir, Anil sir, and all respected scholars. So I was, as a part of the Jazz group, I was seeing a lot of debates and question answers happening around milk. So, what were the things that I just observed over there? The first thing was like some people were talking in favor of milk and others talking in favor of veganism. So, I'm not going to debate over here. I'm only going to add more, not what to say, information to the information that you already have. So I will not. I'm not going to make tall claims, and I'm not going to take sides that whether milk is good or not, veganism is good or not. That is not my intention. My intention is to highlight to inform the August audience about the things that were left out in the group, not discussed in the group. Okay, not to take the discussion forward. My purpose is not to stretch the discussion, rather we can close this discussion or very seriously take up the research related to the points that I'm going to discuss. I hope I'm loud and clear. Unnecessarily we just keep discussing whether this is good, that is good. So that is not my intention. And I'm not going to be judgmental about whether milk is good or not, veganism is good or not. I allow you to decide. I'm only going to share some piece of what to say, the details that have helped me in my life and that have helped me to connect the dots between our dietary habits and the spiritual evolution. Okay, just connecting the dots. That's all. Okay, so first of all, when we talk about milk, we have to first go to Rishabdev Bhagwan. Not Raja, not Rishabdev Bhagwan, Raja Rishab, who taught Asi, Masi, Krishi, Vanijya, Vidya, Shilp, and he being the father of civilization, you cannot question, not you cannot question, because that was the natural order. And that is the natural order in which a civilization can survive. So, Krishi mein, the bull and the ox, they are an important part. If you eliminate these two from the civilization system, the civilization will collapse. This is a subject of research. So I'm going to give you a lot of pointers for research because Jain Academy of Scholars is an academy of scholars and we all like to focus on research. So, how, if these six things are eliminated from a civilization, the civilization will collapse. So, Krishi definitely in those days was organic and natural, and cows and bullocks and all these were an important part. So if you say that veganism, if you matlab people say veganism is good, okay, I agree with most of the points what they say because I'm going to talk about in favor of that also, but I'm not for veganism. Because if you're a total vegan, then you are eliminating the cow and the bullock from the system, which is, I will say, not Aram but Maha Aram. I mean, it is driving close to destruction. Because driving close to destruction, and this is a subject of research. Second thing, when we come to talking about cows and milk, we talk about Upasak Dasang Sutra, where the Shravak had 10,000 cows and 40,000 cows and है ना 10-10 हजार गायों का गोकुल हुआ करता था. गोकुल. और अपने आलोयना में एक गाथा भी आती है, गोधन गजधन रत्न धन कंचन खान सुखान जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान.
मतलब उन दिनों में द वेल्थ ऑफ अ पर्सन, द माइट और द स्ट्रेंथ और द वेल्थ ऑफ अ पर्सन वाज मेजर्ड बाय द एनिमल्स दे हैड, गोधन, गजधन, रत्न धन एंड सोना चांदी आदि वगैरह। एंड अबाउ ऑल वाज द संतोष धन। दे नेवर मेंशन किसके पास कितनी इंडस्ट्रीज है, मशीन्स है, फैक्ट्रीज है ना, वो नहीं उस जमाने में ना था। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चौथे आर्य की बात, है ना, ये तो मतलब चौथे आर्य की बात है, बट वो छह आरों में एप्लीकेबल होती है ना। अब चूंकि हम पांचवें आरे में आ गए, इसका ये मतलब नहीं कि वो एप्लीकेबल नहीं है, ऐसा नहीं। थर्ड थिंग, जो पहले दूसरे तीसरे आरे के लोग थे, दे वर ऑल फ्रूटेरियंस। दे वर नॉट मिल्क कंज्यूमिंग पीपल, दे वर नॉट मीट कंज्यूमिंग पीपल, ऑल वर फ्रूटेरियंस। बट आज हम क्या करते हैं, हम मिल्क के साथ फूड भी लेंगे, फ्रूट्स भी लेंगे। कोई समझ लीजिए एकाशना करने बैठा है, तो वो दूध भी पिएगा, दही भी लेगा, खाना भी लेगा, फ्रूट भी लेगा, तो बीमारी आएगी। अब दूध लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, गाय पालनी चाहिए नहीं पालनी चाहिए, पहले मैं वो भूमिका बांध के अब मैं विषय पर थोड़ी देर में आऊंगी। चौथी बात अपने को मिलती है आइमबिल में। आइमबिल में हमें कहते हैं कि आप एकदम ब्लैंड फूड लीजिए, जिसमें आपके दूध, दही, घी, तेल, मिठाई वी गए, है ना, पांचों विगय का हम त्याग करके, और नमक शक्कर आदि का भी त्याग करके एकदम सिंपल आहार लेते हैं, उसमें दूध वर्जित होता है। ऐसे ही निर्जरा के 12 भेद में रस परित्याग आता है। रस परित्याग में दूध, दही, घी, तेल, मिठाई और फिर अपने मद्य, मांस, मधु आदि के भी त्याग की बात आती। तो आप देखिए निर्जरा के 12 भेद में फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज गिवन टू अनशन। अनशन यानी कंप्लीट फास्टिंग, इंटरमीडिएट फास्टिंग, कंप्लीट फास्टिंग। एंड व्हेन यू ब्रेक योर फास्ट, उनोदरी बोला हुआ है। उनोदरी मतलब ईटिंग लेस देन रिक्वायर्ड, है ना। जापानीज लोगों का लंबे जीवन जीने का जीने के पीछे एक उपाय राज ये है, दे फॉलो द 80-20 फॉर्मूला, यानी 80% अपना स्टमक फुल हो जाए तो स्टॉप। और हम देखते हैं जैसे चेन्नई में हमारे यहाँ पर, मैं बताना नहीं चाहती हूँ लेकिन फिर भी बात आई है तो बता देती हूँ, वर्षितप करवाते हैं। वर्षितप करवाते हैं, सामूहिक कम्युनिटी किचन्स है, 5-6 जगह है मेरे 4 किलोमीटर रेडियस में, और सामूहिक किचन है। और वहां पे वर्षितप करवाते हैं, एक दिन खाना नहीं, और दूसरे दिन जब खाना खाते हैं तो 40-50 आइटम परोसे जाते हैं। कहाँ है उनोदरी, वहां पर। तो वहां खाना भी खाएंगे, नारियल पानी भी लेंगे, दूध दही भी लेंगे, और तली हुई चीजें भी लेंगे। तो और फिर बीमार होते हैं, और फिर नाम होता है कि उन्होंने वर्षी तप किया इसलिए बीमार हो। देर आर सो मेनी केसेस अगेन विच नीड्स रिसर्च, that this is not the way to do your fasting and do your parna, because आप फूड एंड मिल्क को कंबाइन कर रहे हो, विच इज अ रॉन्ग कॉम्बिनेशन। It's a total wrong combination, because milk is a complete food in itself, complete meal in itself. उसके साथ कोई भी कॉम्बिनेशन एक बच्चे के लिए, नवजात जो शिशु होता है वो माँ का दूध लेता है, और जब थोड़ा बड़ा होता है तो उसको दूसरा दूध दिया जाता है, तो उसके साथ कोई भी खाना नहीं दिया जाता। जो नवजात शिशु होता है उसके लिए हम लोग स्ट्रांगली रेकमेंड करते हैं कि 1.25 साल तक उसको नमक नहीं देना, और 9 महीने तक उसको धान नहीं देना, है ना, वो दूध के। और जो जब माँ के दूध से जो उसको प्रोटीन मिलता है, वो आने वाले हफ्तों में वो प्रोटीन की मात्रा भी कम होती जाती है। ये कुदरतन कम होता जाता है, क्योंकि बच्चे की रिक्वायरमेंट अब उस प्रोटीन की नहीं रही। और हम दूध और कैल्शियम, प्रोटीन और कैल्शियम के नाम पर दूध को एकदम, क्या बोले, बहुत ईमानदारी से सबको बोलते कि अरे भाई दूध नहीं लोगे तो कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, दूध नहीं लोगे तो तुम्हारे हड्डियां कमजोर हो जाएगी। जबकि ये प्रूव हो चुका है कि जो दूध लेते हैं लेकिन उसको पचाते नहीं, पचता नहीं है, तो दूध के लेने के लिए दो शर्तें हैं। एक तो आपका मेटाबॉलिक फायर बहुत अच्छा होना चाहिए, और दूध एकदम देसी गाय का होना चाहिए। और अगर ये दोनों शर्तें नहीं मंजूर है तो दूध नहीं लेना चाहिए, है ना। शर्त है, सशर्त बात हो रही है।
तो अब जो देसी गाय है वो कैसी होती है, जिसका हम्प निकला होता है, जो 5-6 घंटे चर करके आई है ना, जिसके सर क्या बोले, कमर पर सूर्य केतु नाड़ी होती है, मतलब देसी गाय में सूर्य केतु नाड़ी होती है। और जो हम दूध बोलते हैं वो गाय का दूध नहीं है, वो पशु का दूध है। वो गाय गाय ही नहीं है। जो डेयरी फार्मिंग में मतलब मास लेवल पे जो गाय होती है वो हाइब्रिड है, वो पशु है, वो गाय नहीं है। क्योंकि गाय बोले तो देसी गाय होती है, अपनी गिर गाय बोलिए या जो भी इंडियन ब्रीड की जो गाय होती है वो। बाकी सब जो है वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वगैरह करके जो भी है, आज आप देखते हैं कि सब जगह अडल्ट्रेशन है। तो जहां पर हाइब्रिड फ्रूट्स वेजिटेबल्स मिल रहे हैं वहां पर हाइब्रिड गायें वगैरह वगैरह जो भी है, मुझे उस रास्ते पे अभी नहीं जाना है। तो सशर्त ये है कि देसी गाय होनी चाहिए, सूर्य केतु नाड़ी मतलब उसके होती है, और वो 5-6 घंटा चर के आती है। जब वो चरती है तब सूरज चांद आदि जो भी प्लैनेटरी कॉस्मिक एनर्जी है वो सूर्य केतु नाड़ी उसको ग्रहण करती है और उसको 3 चीजों में कन्वर्ट करती है। एक गोबर, एक यूरिन और एक मिल्क। और तीनों में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, तीनों में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। और अगर ये नहीं हो तो वो सूर्य केतु नाड़ी नहीं है, देसी गाय नहीं है, उस दूध में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज नहीं है, तो वो दूध को हमें छोड़ देना चाहिए। अब दूध से क्या क्या बेनिफिट्स है, नुकसान है, वो सब मैं अभी 2 मिनट में बताने वाली हूँ। और दूसरी शर्त मैंने बताई कि जो कोई दूध लेता है, कोई भी दूध लेता है, तो उसमें जो फैट होता है, दूध इज एसेंशियली फैट। और हमारे बॉडी को 7 चीजें चाहिए होती है। एक है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर और फैट एंड वाटर। ये सातों चीजें अगर हमारे बॉडी को, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो हमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स लीफी वेजिटेबल से मिलते हैं, वो अगर हमारे बॉडी को नहीं मिलते हैं तो जो दूध हम लेते हैं वो पचता नहीं है। तो दूध इज मैक्सिमम फैट, और 75% ऑफ दैट फैट इज डाइजेस्टेड ओनली थ्रू प्राणायाम। इट इज डाइजेस्टेड ओनली थ्रू कायोत्सर्ग एंड प्राणायाम। यानी वो फैट है, वो जब ब्रेक डाउन होता है, वो ब्रेक डाउन होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड होकर के फिर बॉडी से निकलता है। और बाकी का 25% फैट इज डाइजेस्टेड बाय फिजिकल एक्टिविटी। अब हम दूध तो पीते हैं लेकिन फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, प्राणायाम नहीं करते, कायोत्सर्ग नहीं करते, तो वो दूध अंदर हमारे बॉडी में वो जो फैट बना है वो आपके बॉडी में कहीं पर भी जाके जमा हो सकता है। एक तो अनडाइजेस्टेड प्रोटीन, the dead protein, it converts into urea, uric acid, and all these fats लेयर दर लेयर हमारे शरीर में जमा हो जाते हैं। और इससे क्या होता है, हमारी एफिशिएंसी, हमारा सेल का मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म वगैरह जो भी है, इट गोज फॉर अ टॉस। इसलिए क्या, देखिए आप लोग जो दही चावल खाते हैं या दूध आदि लेते हैं, उनको तुरंत नींद आती है। यानी आपने बॉडी में ऐसा सब्सटेंस डाल दिया है कि अब बॉडी बोलता है भाई अब मुझे छोड़ दो, मुझे रेस्ट करने दो, आई एम नॉट गोइंग टू कोऑपरेट विद एनी ऑफ द वर्क दैट यू डू। यही अगर आप 75% फ्रूट्स वेजिटेबल्स डाइट पर रहे और 25% आप अपना कुक फूड ले, तो आपको इतना स्लगिशनेस नहीं होता है। यानी मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, आपके अंदर में एक जो स्फूर्ति आनंद आपको चाहिए वो आप यहीं पर अनुभव करेंगे। पहले तो आत्मा के लिए जिनवाणी का ज्ञान, और बॉडी के लिए ये सब अपना ह्यूमन एनाटॉमी और फूड साइंसेस रिलेटेड, ये दोनों ज्ञान अगर हो, इंटीग्रेट होकर के हम लेकर के चले, तो कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। तो आरोग्य बोहि लाभम। तो आरोग्य सबको चाहिए, उसके लिए हमें बोधि चाहिए, बोधि यानी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तभी हमारे जीवन में समाधि हो सकती। समाधि यानी जो सेल्फ रियलाइजेशन या एनलाइटनमेंट। और तीनों जहां हो वहां सिद्धि है, तीनों जहां हो वहां पर सिद्धि है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि रस परित्याग में हमें बताया गया है कि आप पीरियोडिकली इन चीजों का त्याग करें। अगर आप पूरा नहीं छोड़ सकते हैं तो आप इनको एक्सेसिव वे में मत लीजिए, और करेक्ट कॉम्बिनेशन में लीजिए, रॉन्ग कॉम्बिनेशन में मत लीजिए।
अब एक मेन बात मैं बताने वाली हूं कि चार प्रकार के शुगर्स होते हैं। चार प्रकार के शुगर्स होते हैं। एक है द बेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर इज द सुक्रोज, जो हमें गन्ने के रस से मिलता है। सेकेंड होता है फ्रक्टोज, जो हमें फ्रूट से नेचुरल शुगर हमारे बॉडी को नेचर प्रोवाइड करता है। तीसरा है माल्टोस, जो धान में मिठास है। पुराने जमाने में बाजरी का सोगरा वगैरह खाते थे, तो वो बाजरी की रोटी हमें कितनी मीठी लगती थी, है ना। आज वो टेस्ट नहीं रहा, क्योंकि धरती को जो मेन्योर चाहिए, मेन्योर चाहिए जो गोबर आदि के रूप में चाहिए, वो नहीं दिया जा रहा है। सब कुछ आर्टिफिशियल हो गया। तो धरती में वो जो सॉइल की फर्टिलिटी है, जो उसकी उपजाऊ शक्ति है, जो उसकी जो रासायनिक शक्ति है, वो भी क्या हो गई है, हैम्पर हो गई। और यहां तक कि बाइबल में लिखा हुआ है कि 7 साल में एक बार लीव द लैंड बैरन, डोंट प्रोड्यूस एनीथिंग, देन इट बिकम्स रेडी फॉर द नेक्स्ट साइकिल। तो वहां पर भी क्या है, संवर की बात, जैसे मतलब डोंट, इट इज रिटन बट हु फॉलोज इट। ठीक है ना। तो बात अपनी चल रही थी थर्ड शुगर की, माल्टोस के रूप में। और फोर्थ शुगर है लैक्टोस। लैक्टोज यानी जो मिल्क में जो नेचुरल मिठास है। अब जो मुद्दे की बात है कि 5 साल की उम्र के बाद हमारे बॉडी में लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के एंजाइम्स प्रोड्यूस नहीं होते। 5 साल की उम्र तक बच्चों को दूध दिया जा सकता है, वो भी देसी गाय का देना चाहिए, भैंस का तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। क्योंकि भैंस का बच्चा पैदा होते ही वहीं बैठा रहता है, ठप रहता है, लेकिन गाय का बच्चा वो उछलने कूदने लगता है। तो ऐसे ही जो भैंस का दूध पीते हैं उनकी बुद्धि ठप होती है। गाय के दूध में वो बात होती, भैंस के दूध में वो बात नहीं होती जो गाय के, क्योंकि वो फैट कम है। वहां पर गाय के दूध में फैट कम है। मुझे याद है हम बचपन में छोटे थे, दूध लेने जाते थे, तो हम भैंस का दूध प्रेफर करते थे। क्यों? क्योंकि जाड़ा आता था और पैसे थोड़े से ही ज्यादा लगते थे। लेकिन अब ये सब पढ़ने के बाद लग रहा है कि अरे भाई, ये क्या हो, है ना। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो जो क्या बोलते हैं, मिल्क को डाइजेस्ट करने के एंजाइम्स हमारे बॉडी में नहीं होते, इसलिए बहुत लोग क्या हो जाते हैं, लैक्टोज रेसिस्ट, मतलब इंटॉलरेंट हो जाते हैं, है ना। और वो फैट आदि के कारण अब ये जो मिल्क है ना, ये कफ प्रोड्यूस करता है हमारे। अब मैं और एक नेक्स्ट पॉइंट पे आती हूँ। और एक बात हमें शास्त्रों में पढ़ने को मिलती है कि जंगल में मुनिराज जा रहे थे, उनको खीर का पारना करवाए, है ना, या फिर शालीभद्र ने खीर का पारना करवाए। तो आगमिक रेफरेंस हमें बताते हैं कि गाय और ये सब जो है कैटल और खीर और वगैरह जो है, ये सब मतलब अपने सिविलाइजेशन के, अपने डेवलपमेंट के बहुत महत्वपूर्ण अंग है। अगर इन अगर हम वीगन बनने की बात करें और इन सबको एलिमिनेट करें, तो देन हम लोग बहुत, क्या बोले, मैं कहूंगी कि हम आराधना आराधना के भी लायक नहीं रहेंगे, फ्यूचर हमारी जो जनरेशन्स रहेगी। ओके। सो नेक्स्ट आई वुड लाइक टू गो टू, क्या बोले, गाय का जो वात्सल्य है वो बहुत फेमस है। कि गाय ही एक ऐसी, ऐसा, मतलब क्या बोले, पशु नहीं बोलना चाहती, ऐसा जीव है जो अपने पैदा होते ही अपने बच्चे को लिक करके, उसको क्लीन करके, उसको क्या करता रहता है, उसको साता पहुंचाता है। कोई भी दूसरा जानवर ये काम नहीं करता, मनुष्य ये काम। मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो। आ रही है आवाज, बोलिए। नहीं, प्रियदर्शन जी बीच में क्यों बोल रहे हैं? तो आगे, am I okay with everybody? Am I okay with everybody? मेरी आवाज आ रही है ना सबको? बिल्कुल आ रही है। यस ओके, यस। ओके, ओके। चलिए, तो सबसे पहले तो जो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, उनके बॉडी में वो डाइजेस्ट नहीं होता है, तो वो किस रूप में कन्वर्ट होता है। अब मैं हेल्थ पर्सपेक्टिव से मिल्क का जो एनालिसिस है वो आपके सामने रखती हूँ। सबसे पहले तो मिल्क जो होता है वो बहुत हेवी होता है। प्रकृतन उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत, अर्थ एलिमेंट उसमें ज्यादा होता है, भारीपन ज्यादा होता है। ये बॉडी को स्ट्रक्चर देता है, लुब्रिकेशन देता है, लेकिन कब तक? जब तक वो डाइजेस्टेबल हो तो।
और अगर डाइजेस्टेबल नहीं हो तो वही हमारे स्ट्रक्चर को बिगाड़ने में काम करता है। सेकेंड पॉइंट, इट एग्रेवेट्स द कफ एलिमेंट। हमारा शरीर 3 दोषों से बना हुआ है, वात पित्त और कफ। तो जब जब क्या बोले, यहाँ पर बताते हैं कि सबसे पहले तो ये अपने कफ एलिमेंट को इम्बैलेंस करता है। इट सप्रेसेस द डाइजेस्टिव फायर। हमारी जठराग्नि को ये बंद करता है ड्यू टू द स्वीट टेस्ट, है ना। वो उस मिठास ज्यादा रहने के कारण, उस स्वीट टेस्ट के कारण हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को अफेक्ट करता है। थर्ड, वेट गेन और वाटर रिटेंशन का काम करता है। जितना ज्यादा लोग जो दुबले पतले उनको बोलते हैं दूध पियो, है ना, तो आपका वेट बढ़ेगा। लेकिन वेट बढ़ेगा, लेकिन वो सही वाला वेट नहीं होता है। हाँ, किसी को अगर एक कोई बीमारी के रूप में दुग्ध कल्प लेना हो तो उसकी भी बात हम करते हैं। तो दुग्ध कल्प, जैसे छाछ का कल्प होता है, दूध का कल्प होता है, तो उसके लिए भी बहुत सारे रूल्स होते हैं कि कौन सी बीमारी में पहले कैसे लेना चाहिए, फिर कैसे दूध लेकर के, जिसको बहुत ज्यादा एसिडिटी हो, हाइपर एसिडिटी हो, तो उनको कुछ समय के लिए हम लोग दुग्ध कल्प दे करके ठीक करने की बात करते हैं। ठीक है, मैं चलूं आगे। हेलो। हाँ हाँ, चलिए बोलिए। हाँ ओके ओके। सो नेक्स्ट आकर के, मिल्क प्रमोट्स ब्लॉकेजेस। जो आज आज हार्ट की ब्लॉक्स आती है, ट्यूमर आदि की बात आती है, तो ये ब्लॉकेजेस को करता है, हार्मोनल इम्बैलेंस करता है, मंदता और जड़ता को बढ़ाता है। इसलिए बच्चों के लिए भी हम लोग बोलते हैं कि एक उम्र तक 1 बार दूध, 3 बार दूध दीजिए, फिर 2 बार करिए, फिर 1 बार करिए और फिर बंद कर दीजिए। और दूध के लिए बहुत सारे अपने पास सब्स्टिट्यूट्स है। सबसे बेस्ट वो सब्स्टिट्यूट्स वगैरह भी मैं आपको बाद में बता दूंगी। नेक्स्ट आकर के, दूध के कारण हमारे लंग्स में म्यूकस, जिसको कफ बोलते हैं, वो जमा होता है, और साइनस, आस्थमा, ब्रोंकाइटिस से इन सब का डायरेक्ट रिलेशन है। नेक्स्ट आपको मैंने बता दिया कि मेटाबॉलिज्म को ये वीक करता है, डाइजेस्टिव इश्यूज और कॉन्स्टिपेशन का भी एक कारण है। और कॉन्स्टिपेशन जो है वो सब रोगों की नानी है। अगर कॉन्स्टिपेशन है, पेट साफ नहीं है, आपका गट लीकी गट होकर के फिर जहां जहां बॉडी जमा करेगी, किसी का किडनी में, किसी के आंखों में, किसी के कानों में, किसी के ब्लड में, किसी के लिवर में, किसी के कोलोन में, वो सब जाकर के टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी हैव these lifestyle diseases like BP, sugar, cholesterol, all these kind of। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें मैंने पहले ही बताया, अर्थ एलिमेंट इसमें रिच है। बट हम तो क्या है, बुद्धिजीव है। हम एक्सरसाइज वगैरह करते नहीं है, वॉकिंग करते नहीं है, सीढ़ियां चढ़ते उतरते नहीं है, कुएं से पानी लाते नहीं है। सब काम मशीनें करती है, नौकरानियां करती है, औरतें खा पी करके बैठी रहती है। तो फिर क्या होता है, नो एक्सरसाइज के कारण वो फैट स्टोरेज बढ़ता जाता है ना। अब वो जो फैट बॉडी में गया, और हम तपस्या भी नहीं करते कि उस फैट को बर्न किया जाए। आप सब जानते हैं ना, तपस्या करते हैं तो ऑटोफेजी होती है, तब बॉडी में जहां जहां भी अनवांटेड चीजें हैं, तो बॉडी उन सबको क्या करती है, निकाल करके उनको गुड प्रोटीन में कन्वर्ट करती है, या फिर बॉडी से बाहर फेंक देती है। इसलिए पीरियोडिकल इंटरमिटेंट फास्टिंग इज अ पार्ट ऑफ अवर डेली लाइफ, एंड सब रिलीजन्स में फास्टिंग का बताया गया। लेकिन फास्टिंग का, मोक्ष का, फास्टिंग से मोक्ष का, फास्टिंग से निर्जरा का क्या संबंध है, वो मैं कभी आगे लेना चाहूंगी। आज नहीं, जब अपने तत्वार्थ की क्लास आएगी तब वहां आएगा ही, तब मैं आपको बता दूं। नेक्स्ट, ये जो दूध है वो क्या करता है, हमारे वायु तत्व को रिड्यूस करता है ना। और वायु तत्व को स्लाइटली रिड्यूस करता है। बट व्हेन अनडाइजेस्टेड, वायु को ठीक करता है, दूध है ना, वायु को ठीक करता है, इसलिए हमें थोड़ा एक फील गुड फैक्टर भी लगता है। लेकिन जब ये अनडाइजेस्टेड हो, सुनिएगा ध्यान से, यही दूध हमारे गैस्ट्रिक ट्रबल, ब्लोटिंग और एब्डोमिनल डिस्टर्बेंसेस का भी कारण बन जाता है। नेक्स्ट आकर के, लैक्टोज इंटॉलरेंट, है ना, कोई कोई है जिनको दूध बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी बच्चों को हम दूध जबरदस्ती पिला देते हैं। तो उस इंटॉलरेंस के कारण उनके कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप नहीं होते।
उनके विचारने की क्षमता, भेद विज्ञान की क्षमता, विवेक की क्षमता भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जब बच्चे बोले हमें दूध नहीं चाहिए, जबरदस्ती नहीं देना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आकर के अब हम त्रिदोष को लेते हैं, वात पित्त और कफ। त्रिदोष को लेकर के मिल्क को एनालाइज करते हैं कि यही मैंने अभी बताया, वात को ठीक करता है, लेकिन जब डाइजेस्ट हो तो, नहीं डाइजेस्ट हो तो ये हमारे गैस, गैस्ट्रिक ट्रबल, ब्लोटिंग, स्टिफनेस और टॉक्सिक बिल्डअप करता है ना। वायु तत्व बिगड़ जाता है, टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं, जो हवा, जो ऑक्सीजन हमारी नलियों में जानी, फ्रीली जानी आनी चाहिए, वो अब ब्लॉक होने लग जाती है, क्योंकि वहां पर टॉक्सिक बिल्डअप हो गया है। सेकेंड, पित्त। पित्त के लिए बताते हैं कि ये डाइजेस्टिव फायर को क्या करता है, मंद करता है, सप्रेस करता है। और कफ एलिमेंट को ये इंक्रीज करता है। तो ये मैं आयुर्वेद से नहीं बोल रही हूँ, बहुत हमारे नेचुरोपैथी में भी ये सब बातें आती है। अब मैं नेक्स्ट जो बात बता रही हूँ वो है 5 एलिमेंट्स को लेकर के मिल्क का क्या रिसर्च है या स्टडी है। 5 एलिमेंट्स आप सब जानते हैं, अर्थ, वाटर, एयर, फायर एंड स्पेस। अब ये दूध का इन पांचों से क्या संबंध है, वो थोड़ा सा मैं आप सबके समक्ष रखती हूँ। सबसे पहले तो दूध, अर्थ एलिमेंट इसमें ज्यादा है, रिच है, डेंसिटी ज्यादा है, लेकिन पाचन कमजोर है बच्चे का या व्यक्ति का, तो वो स्लगिशनेस, स्लगिशनेस यानी आपकी ऊर्जा को कम करेगा। आप में जो एक स्वाभाविक, एक नेचुरल ऊर्जा होनी चाहिए, उस ऊर्जा में बाधा उत्पन्न करेगा अर्थ एलिमेंट। वाटर एलिमेंट के लिए बताया कि ये आपके H2O का इम्बैलेंस, हमारा बॉडी 75% वाटर, 70 या 75 जो भी परसेंटेज है वो वाटर है। तो उस वाटर एलिमेंट को वो क्या करता है, इम्बैलेंस को इंक्रीज कर देता है। थर्ड थिंग आकर के एयर, वायु रिड्यूस करता है, और फिर व्हेन नॉट डाइजेस्टेड, गैस्ट्रिक, ब्लोटिंग, ये वायु एलिमेंट को भी इम्बैलेंस कर देता है। फायर एलिमेंट के लिए बताया कि आपका मेटाबॉलिक फायर ये वीक करता है। इनर फायर, जो हमारे जीवन में एक उत्साह होना चाहिए, एक सेवा का, परोपकार का, अध्यात्म का, वो सब फायर लिटरली खत्म जैसा हो जाता है। व्यक्ति उस दिशा में सोचना ही नहीं चाहता है, क्योंकि वो पशु पशु से आया हुआ है ना। और उस पशु को आजकल कितने हार्मोन्स दे करके, आर्टिफिशियल सब करके, है ना, उसको कितने भय के वातावरण में रख करके, उससे वो नकली काफ्स को उनके सामने रख करके, आर्टिफिशियल वगैरह, ऐसा मतलब दूषित वातावरण में उस दूध को निकाला जाता है। तो वो दूध भी एक तरह से पॉइजन जैसा ही होता है, पॉइजन तो नहीं बोल सकते, लेकिन पॉइजन जैसा ही होता है। तो उसके कारण जो हमारा इनर फायर, एक दिव्यता, एक मानवता का जो संस्कार हमारे अंदर होना चाहिए, वो पशुता उस पर हावी हो जाती है। ठीक है। और फिर स्पेस एलिमेंट, आकाश एलिमेंट। तो हमारे हमारे बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, और एक सेल और दूसरे सेल के बीच में इंटर सेलुलर स्पेस है। उस स्पेस को ये क्या करता है, उस चैनल को ये obstruct करता है। इसके कारण कॉग्निटिव इश्यूज, हमारे जड़ता, मंदता जो है वो इनके कारण आती है। तो इस प्रकार, हाँ, और एक चीज जो मेरे सामने देखने में आई है, वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर। आज जो कैंसर का जो मेनेस है, और बहुत लोग जो अ, अभी रिसेंटली हमारे फैमिली में ही, दूर की फैमिली में ही 4-5 कैंसर केसेस आए हैं। और जब मैंने ये रिसर्च किया तो मैंने देखा कि कौन से कैंसर मैं आपको बता देती हूँ। पॉसिबल टाइप्स ऑफ मिल्क बोन कैंसर्स, एंड द रेफरेंस फॉर दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल बुक, मिल्क इज अ साइलेंट किलर। Milk is a silent killer by Dr. N.K. Sharma. He says kidney cancer, bladder, gallbladder cancer, prostate cancer, colon cancer, सब देखिए, ये सब अपने पाचन, एब्डोमिनल ऑर्गन से रिलेटेड है। लंग कैंसर, ओवेरियन कैंसर, रेक्टम कैंसर, फिर मल्टीपल माइलोमा, न्यूरोब्लास्टोमा, लिवर कैंसर, brain cancer, and bladder cancer. All these are related with the क्या बोले, मिल्क प्रोडक्ट्स विच आर ईटन। अभी देखो, हम सिर्फ मिल्क तो लेते नहीं है, मिल्क के साथ लोग क्या क्या लेते हैं, चीज, बटर, क्या बोले, और केक्स, पेस्ट्रीज, बिस्किट्स, और पनीर,
है ना। किसी को भी पूछिए क्या सब्जी बनानी है, पनीर बटर मसाला। सुबह पनीर, शाम को पनीर, दोपहर को। हेलो, am I audible? हाँ, अरे ये सब बोलिए। ओके 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 ओके, क्योंकि आप लोग सब मेरे सिस्टम में फ्रीज हो जा रहे हैं, इसलिए मेरे को बार बार पूछना पड़ रहा है। सो तो ये डाइजेस्ट नहीं होने के कारण, ये जमा होने के कारण, ये क्या होते हैं, ये सब तरह के कैंसर्स आपको क्या बोले, दे लैंड अस इन आईसीयू। एंड नो डॉक्टर्स विल टेल यू ऑल दिस। नो डॉक्टर्स विल टेल यू ऑल दिस। सेकेंड आकर के एक मिथ है कि आपको कैल्शियम के लिए दूध लेना पड़ेगा। तो कैल्शियम के लिए यहां पर बताया गया है कि, सुनिए ध्यान से, कि काऊ को कैल्शियम कहाँ से मिलता है। जब काऊ के दूध से कैल्शियम मिलता है, तो काऊ के दूध में वो कैल्शियम आया कहाँ से। तो वो, उसने तो घास खाई थी ना, उसने तो घास खाई थी। तो ग्रीन प्लांट्स और लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नेचर प्रोवाइड्स एवरीथिंग टू अस। हमें वो दूध की जरूरत ही नहीं होती है। ठीक है। अब यहाँ पर कहते हैं कि कैल्शियम लिया आपने, दूध लिया, लेकिन आपने क्या बोले, उसमें मैग्नीशियम इतना नहीं होता है। तो उस कैल्शियम को डाइजेस्ट करने के लिए विटामिन डी चाहिए होता है, धूप चाहिए होती है। लेकिन धूप नहीं लेने के कारण वो कैल्शियम क्या, वो डाइजेस्ट नहीं होता है, तो फिर हड्डियों में से वो खींच लेता है तत्वों को। तब बोन्स वीक हो जाते हैं। इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस इज वेरी डायरेक्टली रिलेटेड विद द कंजम्पशन ऑफ मिल्क। ठीक है ना। अब मैं आपको जो दूसरी तरफ आप ले जाना चाहती हूँ, कि सबसे पहले तो गाय का क्या महत्व है अपने जीवन में। ये तो मिल्क की बात हुई, और मिल्क कम्स फ्रॉम द काउ। तो मिल्क मना करने के पीछे, काउ को हम मना नहीं कर रहे। काउ की उपयोगिता को अब मैं थोड़ा सा आपके समक्ष रखना चाहती हूँ, कि एग्रीकल्चर में काउज एंड ऑक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनिमल हस्बेंड्री इज एन इम्पॉर्टेंट क्या बोले, एक्टिविटी ऑफ ह्यूमंस। और इसके जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, स्ट्रॉ, फॉडर, ब्रांड, ऑयल सीड, केक्स वगैरह, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑर्गेनिक मेन्योर आपको इनसे मिलता है। और इनकम डाइवर्सिफिकेशन का एक मौका मनुष्य के लिए होता है। इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर, इससे रिड्यूस इट दिस रिड्यूसेस द वेस्ट मैनेजमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और मनुष्य के अंदर एक भावनात्मक शक्ति को वो जीवित रखता है। और रूरल डेवलपमेंट, जैसे व्हाइट रेवोल्यूशन के टाइम में हुआ, तो वो रूरल डेवलपमेंट में भी उपयोगी होता है। लेकिन अति सर्वत्र वर्जित, अति में चले जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाए। नेक्स्ट आकर के बायोगैस। फिर न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, जो पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति है, न्यूट्रिएंट्स को वो मेन्योर आदि के साथ जो रिसाइकल करने के लिए काउ, बुलक्स, इन सब की बहुत जरूरत होती है। सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी दूध के साथ जुड़े हुए हैं। और एग्री बेस्ड फेस्टिवल्स एंड कल्चर, रिचुअल्स, आप देखते हैं हमारे तमिलनाडु में पोंगल है। तो यहाँ पर जब जल्लीकट्ट, आप सब जानते हैं जल्लीकट्ट इज बुल फाइट, के लिए बहुत कोर्ट में केस वगैरह हुआ कि ये बहुत अमानवीय है, बुल फाइट वगैरह नहीं होना चाहिए, कितने लोग मर जाते हैं, तो इनको मतलब बंद कर देना चाहिए। तब रिसर्च सामने आया कि जो जल्लीकट्ट है उसमें जो बुल्स को रखते हैं, वो एक एक नस्ल, आगे की एक स्ट्रॉन्ग नस्ल को तैयार करने के लिए उनको मतलब ये इस प्रकार के प्रोग्राम्स वगैरह किए जाते हैं। तो वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कल्चर है। सेकंड जो है पोंगल आदि में, वो माट पोंगल, गाय को रख करके, है ना। तो बहुत एक तमिलनाडु के कल्चर से गाय का मतलब बहुत पुराना मतलब रिश्ता है। और वो उनके आप जब इधर पोंगल का फेस्टिवल होता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आकर के। तो इसका जो कल्चरल सिग्निफिकेंस है। और तीस लास्ट अंतिम बात, कि आज मैन मैन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, मैन नेचर कॉन्फ्लिक्ट है, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है ना। और अगर ये गाय और बुलक्स आदि सबको सिस्टम से निकाल देंगे वीगन के नाम पर, तो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी इंक्रीज होगा, मैन मैन कॉन्फ्लिक्ट भी इंक्रीज होगा, और मैन और नेचर का कॉन्फ्लिक्ट भी जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार जो है
अब कुछ एक बातें जो मैं आपको सब्स्टिट्यूट्स के रूप में दे सकती हूँ कि हमारा डाइट कैसा होना चाहिए। दूध हम आपसे छीन नहीं रहे हैं, आपको सिर्फ अवेयर कर रहे हैं कि देर आर लॉट ऑफ क्या बोले सब्स्टिट्यूट्स इन प्लेस ऑफ मिल्क, एंड सोया मिल्क इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट, इट इज ऑल्सो नॉट अवर इंडियन क्या बोले स्टेपल फूड। तो सोया यहाँ का नहीं है। और हाँ, एक छोटा सा रिसर्च सामने आया था कि किसी को अल्सर हुआ, तो अल्सर के लिए वो हॉस्पिटल गया और उसको दूध से ट्रीटमेंट दिया गया। तो अल्सर है ना, वो एसिडिटी है के कारण हुआ है, तो दूध से वो अल्सर जलन आपकी शांत होगी, ऐसा बोलते हैं, ठंडा दूध लेना चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन जब वो ये सब ट्रीटमेंट करा के बाद बाहर आया, तो पाया गया कि उसको किडनी स्टोन हो गया, हार्ट डिसीज हो गया, आर्थराइटिस हो गया और कैंसर भी हो गया। he came out with other multiple big diseases, है ना। तो नेक्स्ट आकर के सब्स्टिट्यूट्स मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर सबसे बेस्ट सब्स्टिट्यूट है वो अपना आलमंड मिल्क। आलमंड मिल्क है, कैश्यू मिल्क है, सबसे बेस्ट है तिल का। तिल को आप भिगो करके उसका भी आप क्या बोलते हैं मिल्क बना करके आप, उससे भी बढ़कर है अपना कोकोनट मिल्क। आप रोज एक आधा कोकोनट लीजिए, उसका मिल्क बना करके आप लीजिए, दैट इज आपके सब तरह के अल्सर एसिडिटी को ये ठीक करेगा। और मिल्क, हाँ, एसिडिक और अल्कलाइन डाइट की बात अगर करें तो बॉइल्ड मिल्क कम्स अंडर एसिडिक फूड्स, और अगर अनबॉइल्ड मिल्क हो तो इट कम्स अंडर अल्कलाइन डाइट। देखिए मेरे पास पूरा चार्ट है अल्कलाइन डाइट का और एसिडिक फूड्स का। तो उसमें हमें बताते हैं कि क्या बोले, जो अनबॉइल्ड मिल्क है वो आपकी बॉडी को अल्कलाइन बनाएगा। और जिनको भी साधना करनी है, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, तो उनका शरीर 80% अल्कलाइन होना चाहिए, 20% एसिडिक होना चाहिए। लेकिन हमारा डाइटरी हैबिट्स रॉन्ग होने के कारण, लाइफस्टाइल रॉन्ग होने के कारण हमारा जो बॉडी कॉम्पोजिशन है वो 80% एसिडिक है, 20% ही अल्कलाइन। तो जब हम अनबॉइल्ड मिल्क लेते हैं तो वो अल्कलाइन इन नेचर होता है, और यही जब हम उसको बॉईल कर देते हैं तो वो एसिडिक हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे अल्कलाइन डाइट्स प्रोड्यूसिंग फूड्स में हमारे फ्रेश राइप सार फ्रूट्स, सार मतलब सिट्रस फ्रूट्स बट दे शुड बी स्वीट, खट्टी मौसमी नहीं होनी चाहिए, मीठी वाली मौसमी आप पेट भर के खाइए, नो प्रॉब्लम एट ऑल, है ना। और नेवर नेवर कंबाइन मिल्क विथ एनीथिंग, कंबाइन मिल्क विथ फ्रूट्स, नेवर कंबाइन कर्ड विथ राइस वगैरह वगैरह, ये सब नेचुरल डाइट में हमें सिखाया गया है। और मैं आपको बता देती हूँ, मुझे 20 22 25 25 24 साल हो गए, मैंने दूध दही से परहेज किया हुआ है। और अब तो 1.5 साल से तो बिल्कुल भी क्या बोले एकदम ही नहीं के बराबर। तो उसके कारण मेरा इतना मतलब 15 आइटम में मेरा काम चल जाता। तो दूध माइनस हो गया तो पास्ता और आइसक्रीम्स ये सब कट हो गया, आप समझ रहे हैं ना। और दूध हो तो मिठाई भी चाहिए ना, मिठाई खाएंगे तो फिर नमकीन भी चाहिए। तो कितना अपनी आहार संज्ञा ही बढ़ती जाती। और एक दूध को कम करने से हम आहार संज्ञा को इजिली जीत सकते हैं, रस परित्याग में आ सकते हैं, काय क्लेश तप करना हमारे लिए इजी हो जाता है, और फिर आगे स्वाध्याय ध्यान में जाना भी इजी हो जाता है। क्योंकि अब योर बॉडी इज योर फ्रेंड नाउ, यू आर नॉट टैक्सिंग योर बॉडी बाय गिविंग ऑल द रॉन्ग थिंग्स बाय, मतलब उसके साथ हम क्या बोले, हम मतलब हमारा शरीर इज अवर नेबर। और अगर नेबर के घर में आग लगी है तो हमारे घर में आग लगने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो शरीर अगर सुखी नहीं है, ये ट्रिलियन सेल्स को जो चीज चाहिए वो अगर नहीं देंगे, दे विल नॉट कोऑपरेट विथ यू इन योर साधन। सो ये अपना बॉडी लेवल पर, बॉडी माइंड और सोल लेवल पर अपना परस्पर जो एक संबंध है, उसके बारे में मिल्क को रख करके जो आपके समक्ष बात करने का जो मौका मुझे दिया गया, 45 मिनट्स में करेक्ट मैंने मैंने मेरा टॉक को होस्ट किया है। अब आपके कोई क्वेश्चन आंसर्स हो वेरी तो मैं गुड, ले बहुत सकती बढ़िया हूँ। है।